हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरिहंत और आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। आज एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग हम लोग टॉपिक लेके आए हैं, जहाँ पे आप लोग कई आपका जो भी आईटी करियर है वहाँ पे आप कई बार आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें क्या करना चाहिए, कंपनी में रहना चाहिए या स्विच करना चाहिए। वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अगर आप डिफरेंट डोमेन्स में होते हैं। एंड आज हमारे साथ में है अनन्या जैन, जो कि इन्फोसिस में काम कर चुकी हैं। एंड वो आप बताएंगे कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही इन्फोसिस में एंड उन्होंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है। वेलकम है अनन्या आपका। Thank you so much, Aryan. Thank you so much for this opportunity. Yeah. तो आप अब थोड़ा अपने बारे में बताइए एंड आपने इन्फोसिस में क्या 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 काम किया है एंड क्या आपका पूरा। ठीक है, Aryan. So, as you know, we started from the training period. So there we used to have this 4.5 months of training. So I have undergone that training in Mysore. एंड वहाँ पर जैसे कि आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि कुछ जेनरिक ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में, विच इंक्लूड्स आई थिंक पाइथन एंड एवरीथिंग. देन आफ्टरवर्ड्स वी गेट द स्ट्रीम. सो आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसी स्ट्रीम मिले जिसमें मुझे सीखने को मिले, जिसमें डेवलपमेंट का वर्क हो. So luckily I got this Angular stream, mean stack stream, where I used to have this MongoDB, Express.js, Node.js and Angular. Then I think वो journey थी around 1.5 months की. And उसमें we used to have this project things and everything. So we learned everything from the scratch, how to build the application from everything till the part where we had these projects that we worked on. Okay. So after that, I got the location as Indore, and then we used to search the projects in Infosys. So, like in the starting phase of my career, I was working as an Accelerate projects. If you know, there is something called as Accelerate at Infosys, where we can work on some different kinds of projects that we can take on our end. And there were some POC projects that I worked on. So in the starting phase of my career, I worked on React, Node.js, and even a bit on Angular. Then I got tagged into some project at Infosys, and where my client was from Europe. So in that project, and was working on this project where we used to have this Java backend. It was coded on the Java, and the front end was coded on the Angular. So my main role was to help all the people in the UI topics, and I used to handle every topic related to UI, be it HTML, CSS, JavaScript, or Bootstrap. And we also used to have this Angular material in our project. So I used to work on that as well. So yeah, that was pretty much about my role. तो लाइक आपने जो भी आपका जर्नी रही, तो उसमें आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इन्फोसिस में, लाइक पॉजिटिव रहा? जैसे आपकी जो टीम्स थी वो किस टाइप्स थी एंड आपका जो वर्क एनवायरनमेंट था वो किस टाइप से था? आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस था वो आप कैसे मैनेज करते थे? ठीक है आर्यन. सो बेसिकली मेरा टीम साइज जो था वो था, उसमें 3 लोग थे. तो 2 बैकएंड डेवलपर्स थे एंड वन आई वाज लाइक यूआई फ्रंट एंड डेवलपर. अपार्ट फ्रॉम दिस एक टीएल था एंड 2 बीए लीड्स वर देयर फ्रॉम द क्लाइंट साइड. So I would say my project was very nice and I learned a lot from this project. And even my client side was very nice. And even, I mean, they always used to appreciate for my work, whatever I did. And they always used to recognize me for the work that whatever I did. Okay. So that journey was quite interesting. And तो ऐसा रहता था कि वर्क लाइफ बैलेंस तो ऐसा है कि आईटी कंपनीज में पॉसिबल नहीं है. बट स्टिल आई वुड से कि आई यूज टू मैनेज इट लाइक मेरे कुछ आवर्स थे, वर्किंग आवर्स के थे, उसके अलावा मैं काम नहीं करती थी. एंड इवन माई क्लाइंट साइड वॉज वेरी सपोर्टिव. सो इवन दे गाइज वर लाइक कि व्हाई आर यू वर्किंग सो मच Ananya? So that kind of bonded. I used to share that kind of bond with my clients. So मुझे कभी वो वाला इशू रहा नहीं बेसिकली. सो या. सो फिर आपने अभी जैसे जो कंपनी ज्वाइन की है ना, तो आपने इन्फोसिस को क्यों छोड़ा? लाइक व्हाई यू क्विट इन्फोसिस? Okay, so I will go one by one. So there were few reasons why I had chosen to switch, to make a switch. So the first most important reason was that मेरा manager से interaction बिल्कुल नहीं था, like Infosys side पे. And recognition I won't say कि नहीं मिला, it was always there, but timely recognize नहीं करा Infosys ने मुझे. So that kind of things were missing in Infosys side. Also मुझे थोड़ा और grow करना था अपने career में, like in growth career, like career perspective में.
So that is the main reason why I made that decision to switch. Yeah. And compensation was also one of the main reasons. So as we all know that freshers की salaries थोड़ी कम रहती है, तो I was expecting कि जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो मुझे कुछ अच्छा चाहिए. सही है। वो सबके साथ होता है कि जब भी जो स्विच करता है उसका मेन बेसिक रीजन यही होता है, बट वो जो भी इंटरव्यूअर होता है, रिक्रूटर होता है, उसको नहीं बताना होता है. सो मेन यही है. नहीं अरियंत, आई यूज्ड टू से दिस टू एवरीवन. लाइक मेरे रिक्रूटर्स ने भी मुझसे पूछा ये चीज कि अनन्या व्हाट वाज द रीजन. सो आई यूज्ड टू से दिस टू एवरीवन कि मतलब मुझे कंपनसेशन का तो है ही, मतलब मेन रीजन तो वो है ही ऑफ कोर्स. हाँ. सो अनन्या, जैसे मेरे एक माइंड में क्वेश्चन है कि आपने कैसे स्टार्ट किया, लाइक आपने जो भी जैसे आपने सोचा कि भाई जॉब चेंज करना है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहा? ओके अरियन, सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी सीनियर के साथ काम करते हैं तो वो काफी बेनिफिशियल होता है, बिकॉज वो आपको ऐसे गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए. सो देयर वाज दिस टीएल ऑफ माइन. सो ही यूज्ड टू टेल मी दैट अनन्या सबसे पहले जाके naukri.com पे प्रोफाइल अपना अपडेट करो. एंड देन जनरली क्या होता है, रिक्रूटर्स जब भी naukri.com की प्रोफाइल देखते हैं आपकी, तो दे डेफिनेटली चेक आउट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों प्रोफाइल्स को अपडेट रखो. सो मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि मैं सबसे पहले या उसके पहले भी एक स्टेप होता है, दैट इज योर खुद का रेज्यूमे. सो रेज्यूमे बिल्डिंग इज अ वेरी गुड स्टेप, और अगर वो रेज्यूमे में आपका वेट शो हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अटेंशन मिलेगा. लाइक यू विल गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन विच यू नीड फ्रॉम द रिक्रूटर्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल और अपनी naukri.com पे प्रोफाइल अपडेट करें, और जस्ट उसके पहले आप रेज्यूमे अपना बिल्डअप करें. सो दैट वाज माय मेन क्राइटेरिया फॉर स्टार्टिंग. सो एंड आफ्टर दैट, लाइक नौकरी पे आपने अप्लाई किया, सो रिक्रूटर्स ने आपको कॉल किया, किस टाइप, कितना ड्यूरेशन लगा आपको, एंड आपने कितने इंटरव्यूज दिए? So it was quite a tiring journey, I would say. It was not an easy journey. मुझे लग रहा था कि शायद ये 3-4 महीने का होगा and it would be all, but ऐसा नहीं हुआ. I used like मुझे proper 5 to 6 months की journey है ये. So when I started giving, तब मैं इतना prepared नहीं थी. तब I was just giving interviews for like for the sake of giving interviews, ताकि मुझे पता चले कि where do I stand. It is very important. This is a very important step. You should know where you stand. तो वो तभी आपको पता चलता है जब आप देना स्टार्ट करते हो इंटरव्यूज. बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट टू ऑल द पीपल दैट आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी फर्स्ट कंपनी बहुत अच्छी होती है और आप प्रिपरेशन के साथ नहीं जाते हो, एंड देन यू डोंट गेट दैट अमाउंट कि आप 6 महीने बाद ही दे सकते हो फिर उनके इंटरव्यूज, अगर आपने एक बार अपियर कर दिया तो. सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने बिना प्रिपेयर करे स्टार्ट कर दिया था देना इंटरव्यूज. एंड छोटी मोटी कंपनीज के इंटरव्यू हमेशा देते रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस में रहता है एंड इट इज वेरी गुड. आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उस क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटपैड में लिख सकते हो ताकि आपको आगे वो काम आए. तो ऑल इन ऑल इट वाज 6 months ऑफ जर्नी. सो लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा इंटरव्यूज इतने अच्छे नहीं जा रहे थे. Then I stopped somewhere, and then I again focused on some topics like Angular and everything. I used to see these YouTube videos from Akshay Saini, if you have known them. I think everybody knows him. Yeah, he's actually famous for JavaScript videos, so it's very nice videos. He's uploading very nice videos. So I used to go on that, and then I used to prepare myself, and then recruiters का ऐसा था कि mostly 90 days का notice period होता है Infosys में, and generally उस वजह से कोई आपको लेना ही नहीं चाहता है. So basically होता है कि everybody is like कि हमारे पास तो 30 days और 45 days का ही immediate requirement है, तो हम नहीं लेंगे आपको. So at that time it gets very difficult, क्योंकि जब तक आपके पास first offer letter नहीं आता है तब तक आप आगे नहीं सोच सकते resign डालने का. वही. So it was not easy, but I won't say it was not very like it was not also very difficult. मतलब it is possible, it is doable. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बस थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ता है लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे, naukri.com पे. और आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि ज्यादा टेक्नोलॉजीज में जाने से बेटर है कि जो टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आती है आप उसी पे अपना रेज्यूमे बिल्डअप करो, तो आपको जल्दी अटेंशन मिलता है. आई मीन दैट इज व्हाट आई फेल्ट. नो डाउट अगर आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उन्हें मेंशन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे जावा बेसिक्स आता था, तो मैंने जावा बेसिक्स भी अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट ऑन योर रेज्यूमे, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आपके रेज्यूमे पर ही बनते हैं. तो अगर आपने अपने रेज्यूमे को रीड नहीं किया है तो आप वैसे भी उन आंसर्स को नहीं फेस कर सकते, उन क्वेश्चंस को नहीं फेस कर सकते हो. तो ये था मेरा मतलब आई थिंक ये मेरी जर्नी थी फ्रॉम लाइक 3 to 4 months. या
तो एक क्वेश्चन और है कि जैसे जो आपकी आपकी जो आपने बोला कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो मीन स्टैक है, तो इसमें क्या करियर ग्रोथ है इसमें? लाइक अगर कोई बंदा या बंदी कोई काम कर रहे हैं, तो उनको इस पर्टिकुलर फ्रेम में रहना, लाइक इस टेक्नोलॉजी में रहना चाहिए या फिर कोई अदर टेक्नोलॉजीज पे स्विच करना चाहिए? क्या अगर अगर वो रहते हैं तो उनके क्या ऑप्शंस रहेंगे? ओके, तो मीन स्टैक इज एक्चुअली अ फुल स्टैक डेवलपमेंट थिंग. तो मतलब अगर इफ somebody wants to be a full stack developer, then they definitely have to go through Node.js and MongoDB as a as a DB part, or Angular as a front end part. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बिकॉज मेरा हमेशा से यूई यूएक्स पर्सपेक्टिव से, मतलब मेरा करियर ग्रोथ मैं अपने आप को देख रही थी, तो मैंने कभी भी बैक एंड टेक्नोलॉजीज पे इतना ध्यान नहीं दिया. बट मार्केट में अगर आप देखो तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एंड पीपल वांट कि आप फुल स्टैक डेवलपर बनो. लाइक एनीवेयर यू गो एवरीबडी वुड बी लाइक कि अनन्या, अगर आपको यूआई आता है तो आप पीछे का बैकएंड भी सीखो ताकि आपका हम्म, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाए. बट मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से ऐसा था कि मुझे हमेशा यूआई और यूएक्स में जाना था, तो इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे. एंड आई वुड से इवन इन एंगुलर देयर आर लॉट ऑफ डिमांड्स राइट नाउ. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं भी आता आपको बैक एंड तो इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आपको फ्रंट एंड भी अच्छे से आता है तो इट इज फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन. देन वो आपके ऊपर है कि अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, या फिर आप अगर यूएक्स में शिफ्ट होना चाहते हो, डिजाइनिंग वाला पार्ट करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो अनन्या, जैसे आपने अप्लाई किया तो फिर क्या प्रोसेस रही आपकी इंटरव्यूज की? लाइक कितने राउंड्स रहे एंड क्या प्रोसेस रही? या कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी हुए आपके, कि सिर्फ डायरेक्ट वीडियो कॉल इंटरव्यूज वगैरह हुए आपके? किस टाइप से था प्रोसेस? ओके, सो बेसिकली ये जो प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग था, ये मेरा जनरली naukri.com से ही हुआ है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि लिंक्डइन से मेरा कुछ भी शॉर्टलिस्ट हुआ है. समथिंग गॉट शॉर्टलिस्टेड बट टाइम नहीं था, मतलब टाइम बहुत बाद में शॉर्टलिस्ट हुआ, लाइक जब रिलीविंग डेट के पास में आ रहा था तब वो शॉर्टलिस्ट हुआ, तो आई कैन नॉट गिव दोज थिंग्स. सो बेसिकली यहाँ पर ऐसा था कि टेलीफोनिक इंटरव्यू बोल सकते हैं, बिकॉज फर्स्टली आपको एचआर कॉल करेगी, and then ओके, she'll ask your expectations, and then she'll ask something about you, a little bit about you, but it is like a general discussion. It's not an HR round, but it's like a general discussion. पर्सनल After डिटेल्स that they, वेरीफाई करेंगे? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे वेरीफाई वगैरह करते हैं. ओके, देन उसके बाद टेक्निकल दे शेड्यूल, एंड देन टेक्निकल इंटरव्यू में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में दे आस्क यू अबाउट योर प्रोजेक्ट, एज आई सेड. देन दे इवन आस्क यू कि आप अपने आप को कितना रेट करते हो कोई भी टेक्नोलॉजी में, लाइक इवन इफ इट्स एंगुलर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आप वो बताओगे, देन उसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. And apart from that, totally technical interview mein, they also expect you to code something, like anything, like little bit of problem statements or something like that. So this was the whole procedure for Capgemini, and I will say it was intermediate to advanced level. So ऐसा था, मतलब ऐसा था, ऐसे क्वेश्चंस का पूछे थे. वो आपसे जैसे हार्ड क्वेश्चंस आपके स्टार्टअप्स के जो छोटी कंपनी से या स्मॉल साइज कंपनी से उन्होंने पूछे, या जो आपके जो एमएनसीज वगैरह है उन्होंने पूछे, किस टाइप से क्वेश्चंस थे? ओके, तो स्टार्टअप कंपनीज में जनरली दे टेस्ट योर बिहेवियरल नॉलेज. उसमें वो आपको टेक्निकली इतना नहीं, मतलब कोडिंग कराते, डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. ओके, सो देयर वाज आल्सो वन स्टार्टअप दैट आई गॉट लाइक सिलेक्टेड इन. तो वहां पर बेसिकली दे वांट यू टू हैंडल एनी काइंड ऑफ वर्क. दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप सिर्फ एंगुलर पे काम कर रहे हो या सिर्फ आप यूआई डेवलपर जैसे काम कर रहे हो. दे वांट कि आप कुछ भी हैंडल कर सको. तो स्टार्टअप्स का ये क्राइटेरिया होता है. नो डाउट वहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, आई एग्री दिस, बट वही है कि सबका अपना अपना होता है, लाइक किसी को, मतलब सबके अपने अपने प्रोफाइल्स अलाइनमेंट होते हैं. तो उस टाइप से क्वेश्चंस थे वहाँ पे, काफी ज्यादा बिहेवियरल क्वेश्चंस थे. एंड मिड साइज कंपनीज में मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चंस थे, बिहेवियरल भी थे और टेक्निकल भी थे. एंड एमएनसीज में आई वुड से कि एमएनसीज में भी बिहेवियरल एंड दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ऐसा. बट हाँ, बहुत ही अगर छोटा कोई स्टार्टअप है तो दे एक्सपेक्ट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और आप कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो 10-12 चीजें एक साथ. सो दैट इज व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन इज. यस. एंड वो भी ये भी ट्राई करते हैं कि हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनको कैसे डील कर सकते हैं, एंड यस, यस. हाँ, वो चीज And ज्यादा। this is my personal point of view, मतलब it can differ. Yeah. ओके, तो अनन्या एक एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग जब भी नोटिस पीरियड सर्व करते हैं
ठीक है, जैसे आपने नोटिस पीरियड सर्व किया, तो जो लास्ट मंथ रहता है, जैसे आप 3 मंथ्स का आपने बताया कि 3 मंथ्स हमारा जो भी आपका नोटिस पीरियड रहा, एंड उसमें जो लास्ट मंथ था उसको आपने कैसे डील किया, एंड आपने उसको कैसे हैंडल किया उस पर्टिकुलर 1 मंथ में? कुछ मतलब स्ट्रेस ओके वगैरह अगेन स्ट्रेसफुल रहा आपका, कि आपने उसमें एंजॉय किया, किस टाइप से था वो? ओके अरेन, सो आई वुड से कि काफी स्ट्रेसफुल रहा बिकॉज Infosys expects you to work on notice period. They do not expect कि आप वर्क नहीं करो. तो and even my client side was so nice, so even I cannot do that. तो मुझे काम करना पड़ता था. But the good part was that I asked my manager if there is any another resource that is going to replace me. तो they told me कि हाँ वो मतलब 1-2 हफ्ते में she will be joining. So one who joined in our like project, so I used to give her KTs as well. I used to tell her about the project as well, project architecture as well for the smooth transition. And apart from this, yes, आखिरी महीने में बहुत कॉल्स आते हैं, नो डाउट आखिरी महीने में आपको काफी कंपनीज के कॉल आएंगे और आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप उनके एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च कर सको. सो व्हाट यू कैन डू इज आप बस देते जाओ, इंटरव्यूज देना पड़ता है क्योंकि पॉइंट ये कि यू नेवर नो कि विच कंपनी इज वेरी नाइस फॉर यू एंड यू कैन आफ्टरवर्ड्स रिसर्च ऑन इट, राइट? बिकॉज उस समय आप इतना नहीं रिसर्च कर सकते हो, बट आप इंटरव्यू दे सकते हो एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस देने लेने में कोई मतलब कुछ भी गलत नहीं है. इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग क्योंकि आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इवेंचुअली मतलब प्रैक्टिस में आ जाते हैं इंटरव्यूज देना. सो आई विल से मैंने अराउंड काफी इंटरव्यूज दिए. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक एक दिन में 4-4 5-5 इंटरव्यूज भी दिए हैं मैंने विथ द नोटिस पीरियड, लाइक विथ द वर्किंग डेज. तो यस, यू हैव टू मैनेज इट सम हाउ. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट ये है कि मैनेज करना पड़ता है आखिरी महीने में काफी कुछ. एंड देन इट ऑल डिपेंड्स कि आपने 2 साल में कितना काम किया है. सो इवन समटाइम्स क्लाइंट इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि yes, she is in her notice period, so she'll expect some time where she can prepare and do interviews. सो दैट ऑल डिपेंड्स. बट हाँ, मैं ये कहूंगी कि 10-12 इंटरव्यूज देने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर आप रात में कोई भी आपसे पूछ ले, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू कैन इजीली से दैट. तो यस, तो यही थी मेरी जर्नी पूरी. और it was quite an interesting journey. Like I used to be very stressful. I used to even enjoy. ऐसा नहीं है, मैंने आखिरी महीने में थोड़ा बहुत enjoy भी किया because थोड़ा बहुत काम वर्कलोड अपना कम हो जाता है. बट या कि इट्स ऑल मिक्स्ड अप, लाइक इट्स ऑल मिक्स्ड अप. बट यस, आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे बिकॉज आप आखिरी महीने में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से कॉल्स आते हैं एक्चुअली. तो मेरा कैपजेमिनी में भी आखिरी महीने में ही हुआ है, लाइक आखिरी मंथ में ही उन लोग का कॉल आया था एंड देन ओनली दे गॉट, मतलब आई गॉट सिलेक्टेड. सो या जनरली मतलब जो भी कंपनी अप्रोच करती है वो ये चाहती है कि नोटिस पीरियड कम हो, सो बेटर रहेगा उनके लिए भी. एंड इवन दे प्रोवाइड यू विद द जॉइनिंग बोनस एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप मतलब आखिरी महीने में और जल्दी ज्वाइन कर सकते हो तो दे इवन प्रोवाइड यू विद द जॉइनिंग बोनस. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई वुड से. या ओके, सो एक क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे आपने कैसे डील की नेगोशिएट, जो भी आपकी सैलरी रही, ठीक है, आपको एक ऑफर लेटर मिल गया अप्रोक्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 LPA का आपको एक कोई ऑफर लेटर मिला, ठीक है, एंड आपके पास में सेकंड कंपनी का कॉल आता है एंड वो HR वगैरह जो भी आपका सब सारा इंटरव्यू प्रोसेस हो जाती है, देन आप HR में जाते हो जहाँ पे आपका बेसिकली सैलरी पे डिस्कशन होता है. तो आप उसमें फिर कैसे डील करते हो, आपने कैसे नेगोशिएट किया? कुछ टिप्स वगैरह है आपके पास में क्या, आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं? ठीक है रियन. तो सबसे पहले तो हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमारा बेंचमार्क क्या डिसाइडेड है. तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब अगर आपको कोई 13 LPA दे रहा है, 15 LPA दे रहा है तो आप उससे ज्वाइन कर लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम पे कंपनी कैसी है. एंड मैं हमेशा ये समझती हूँ कि रेज्यूमे में वेट शो करना बहुत जरूरी है. लाइक आगे जाके हो सकता है कि हमें रेज्यूमे में अगर वेट नहीं दिखेगा तो हम कहीं मतलब आई फील दैट वे. ओपिनियंस कैन डिफर ऑब्वियसली, बट मेरा ये हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू था. तो मैं हमेशा पैकेज को नहीं देख रही थी. मतलब पैकेज तो ऑब्वियस था कि रीजन है, बट मैं ये नहीं देख रही थी कि पैकेज बहुत ज्यादा हो जाए और कंपनी आप मतलब यू डोंट नो इन विच कंपनी यू आर. ओके. ऑल्दो आजकल चीजें काफी बदल चुकी हैं. आजकल इवन द स्टार्टअप कंपनीज आर वेरी ग्रोइंग इन अ ग्रोइंग स्टेज. But it all depends on your point of view, like as an individual, your point of view, it is all up to you कि आपको क्या चूज करना है. तो आई वुड से कि अगर आपको नेगोशिएशन वाला जो पार्ट आपने कहा, तो जनरली ऐसा होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि HR जो होती है वो आपको खुद ही बोल देती है कि अनन्या आखिरी के 1 वीक या 2 वीक में हम नेगोशिएट करेंगे, तो यू जस्ट कम बैक टू अस इफ यू हैव अ बेटर ऑफर. ओके.
बट जनरली होता है कि विद द एक्सपीरियंस वॉट एवर वी आर हैविंग, सो दे प्रोवाइड यू द बेस्ट ओनली. बट कभी कभी अगर यू फील कि मतलब ये कम है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू हर एंड यू कैन ऑलवेज आस्क टू नेगोशिएट. एंड नो डाउट दे विल नेगोशिएट, नो डाउट दे विल नेगोशिएट. अगर मतलब उनके लिमिट में होगा, उनके बैंड में होगा, तो दे विल नेगोशिएट. तो ओके। यही कुछ टिप्स होती हैं. और आई वुड से कि बाकी तो ऐसा है कि मतलब ये क्योंकि आईटी का कल्चर हो चुका है नेगोशिएशन का. हम्म। नहीं तो पहले इतना नोटिस पीरियड भी नहीं होता था, तो लोग इतना नेगोशिएट भी नहीं करते. सो ये सरियन, तो अगर नेगोशिएशन की बात करें तो एक सिचुएशन बताती हूँ. लाइक फॉर एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास 10 LPA का ऑलरेडी है ऑफर लेटर, एंड कोई सेकेंड ऑफर लेटर है जो मुझे चाहिए 12 LPA का. सो बेसिकली कई बार ये होता है कि the next company would say कि अगर आपका 10 का है तो we can only offer you 11, 11.5, हम 12 नहीं दे सकते. तो उस समय आपको कैसे डील करना चाहिए? उस समय आपको काफी कॉन्फिडेंटली डील करना चाहिए. आपको ये कहना चाहिए कि हमारी स्किल्स और रोल्स के बेसिस पे अगर हमने जो इंटरव्यू दिया, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इंटरव्यू दिया है, बट यू कैन शो देम दैट हाउ वर्दी यू आर फॉर दैट कंपनी. और थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए अबाउट दैट कंपनी, ताकि आप उनको ये बता पाओ कि आप कितना इंटरेस्टेड हो उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए. तो दिस वे इवन दे गेट कन्विंस्ड. बट कई बार ऐसा होता है कि वो लोग तब भी कन्विंस नहीं होते हैं, एंड दे हैव दिस बैंड. एंड जनरली आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उससे 1 लाख नीचे ही मिलता है. तो दिस इज हाउ द कैच इज. अगर आपको 12 चाहिए तो आप 13 बोलो, अगर आपको 14 चाहिए तो आप 15 बोलो. सो दिस इज द कैच. ओके। बट या मेरे केस में जनरली ऐसा रहा कि मोस्टली लाइक द एचआर्स वर वेरी लाइक काइंड ऑफ नॉट, मुझे ज्यादा नेगोशिएट नहीं करना पड़ा जितना आई एक्सपेक्टेड दे वर एबल टू गिव मी. सो या. ओके। सो अनन्या, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है. एंड लाइक कई कई सारे जो इंटरव्यूज होते हैं, जो भी रिक्रूटर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द आप उनकी कंपनीज को ज्वाइन कर सको. तो वो एक ऑप्शन देते हैं बाय आउट का, है ना? तो वो क्या होता है एंड आपने उसको कैसे डील किया? लाइक अगर आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं एंड उसमें कई कंपनीज पूछती है कि आप बाय आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, जो क्या 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 आपकी सिचुएशन रही आपकी इंटरव्यू प्रोसेस में? ओके. सो जनरली ये तब होता है जब आप नोटिस पीरियड पर नहीं होते हो. लाइक आप जब स्टार्टिंग फेज में होते हो इंटरव्यूज के, तब जनरली आपसे कंपनीज ऐसा बोलती हैं कि हम बाय आउट का ऑप्शन दे रहे हैं, आपकी हेल्प करेंगे बाय आउट करने में. सो ओके। आप प्लीज इनिशिएट करिए उसे, इस टाइप से दे आस्क यू. बट व्हाट यू कैन से इन दैट पार्ट इज, बिकॉज जहां तक मुझे लगता है इन्फोसिस का ऐसा है कि बाय आउट नहीं होता है. आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है. सो स्ट्रिक्टली 90 days का नोटिस पीरियड होता है. एंड even I think I even asked my manager about this in Infosys. तो even उन्होंने मुझे ये चीज के लिए बोला कि अनन्या ये हम कम नहीं कर सकते, नोटिस पीरियड विल बी 90 days. तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? आप दूसरी कंपनी जो आपको रिक्रूट करने आ रही है, आप उसे ये कन्विंस कर सकते हो कि लुक ऐसा नहीं होता है, हमारी कंपनी का क्लॉज है एंड एवरीथिंग. एंड देन यू कैन ऑल्सो कन्विंस देम बाय समथिंग, सेइंग समथिंग लाइक लोकेशन कॉन्स्टेंट, कि आप जिस लोकेशन पर हमें लाइक लेना चाहते हैं हम उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, एंड वी आर एबल टू ज्वाइन यू इन perfectly 90 days. ओके। So somehow you have to convince them, and this is the only way how you can get your first offer letter. लाइक फर्स्ट ऑफर लेटर जैसे ही मिलता है तो वो ज्यादा सही रहता है. ओके। Yes, yes, of course. Because after that your journey starts. I used to think कि जैसे ही first offer letter मिलेगा तो मेरी journey खत्म हो जाएगी और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो it will end. But actually your journey starts from there when you get the first offer letter. ओके। So yeah. सो अनन्या, आपने जैसे इंटरव्यूज दिए तो कितनी कंपनीज के आपके पास में ऑफर लेटर्स थे एंड आपने कौन सी कंपनी चूज की? एंड कितना परसेंटेज, अगर हाइक, अगर अपन देखें, बात करें अगर हाइक की, तो कितना परसेंटेज अपन जो हाइक है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी अपन किसी भी कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो? Okay, Aryan. So, in all, I had 4 to 5 offer letters in my hand. And स्टार्टिंग जब किया था मैंने तो आई मतलब इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मिलेगा, बट क्योंकि आईटी में काफी बूम है अभी मार्केट में. सो आई लाइक मेरा जो लाइक फर्स्ट ऑफर लेटर था दैट आई गॉट ऑन 100% हाइक. ओके। So after that अगर मैं बताऊं तो हाईएस्ट दैट आई वाज होल्डिंग वाज 217% हाइक. सो ये रेंज होता है लाइक 100 to 200% हाइक के बीच में यू कैन गेट एनीथिंग. बट देन डिपेंड्स कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपका रोल आपको सूटेबल है कि नहीं है, एंड थोड़ा बहुत आप कंपनी को भी थोड़ा देख सकते हो. ओके। एंड देन आपका पर्सनल चॉइसेस भी हैं, पर्सनल रोल से अलाइन होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो.
Okay. So currently I choose Capgemini Engineering, which was Altran previously. So right now Capgemini and Altran had this merger. So like post merger, this is the Capgemini Engineering unit, Okay. and they are working into R&D services. तो मुझे मतलब काफी अच्छा लगा लाइक ये सब कुछ सुनकर. देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप जब भी एचआर से बात कर रहे हो तो आप एचआर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि इन व्हाट प्रोजेक्ट यू विल बी टैग्ड इनटू, एंड क्या वो आपको इंजीनियरिंग टीम से कनेक्ट करा सकती हैं क्या. सो इट इज ऑलवेज गुड टू गो दैट वे इन एनी कंपनी, नॉट इन ओनली इन दिस कंपनी बट इन एनी कंपनी. यू शुड ऑलवेज आस्क कि आपका रोल क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और क्या है मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो आगे, क्योंकि वी आर नॉट फ्रेशर्स एनीमोर. Yeah. तो एक्सपीरियंस लोग पूछ सकते हैं ये चीज कि वी शुड नो. ओके, सो दैट वे आई डिसाइडेड, क्योंकि मुझे मेरा रोल अलाइनमेंट सही लग रहा था और मुझे कंपनी भी सही लग रही थी, तो ऑब्वियसली दैट वे आई डिसाइडेड. एंड देन देयर वर सम पर्सनल रीजंस आल्सो लोकेशन के, तो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू चूज कैपजेमिनी इंजीनियरिंग. या Okay. अच्छा, ठीक है. सो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने इंटरव्यूज दिए इतने सारे, तो उसमें आपको एक क्या की पॉइंट्स लगे कि ये पॉइंट्स मुझे आगे ध्यान रखना है, या फिर अगर कोई अदर पर्सन भी इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को देता तो वो क्या सोच के देता, किस टाइप से उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? ओके, सो सबसे अच्छी टिप तो यही है, बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यूज and be honest. Matlab, if you are not knowing an answer, you can definitely say to the recruiter that to the interviewer that I'm sorry, I do not know this answer. And the most polite way to say it is ki I'm not sure about this answer, so you can even give it a try. So No. I used to do interviews in this manner only. And apart from that, yes, again I would say कि resume में जो कुछ भी लिखा है वो आपको पता होना चाहिए. Yeah. बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया. एंड कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी होते हैं लाइक कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, आपने उसको कैसे ओवरकम किया. सो आई फील जब कोई इंसान प्रोजेक्ट में काम कर रखा होता है तो इट इज बेटर कि वो उसको अच्छे से मतलब रिप्लाई दे पाता है, जब क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है उस चीज में. Right. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक ऑब्वियसली टेक्निकल फ्रंट में देखा जाए तो एंगुलर के अलावा आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत जरूरी है, बिकॉज जनरली क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट से ही बनते हैं. और दे लिटरली लाइक देयर इज अ प्लेटफॉर्म नोन एज फिडल, तो वो लोग लिटरली आपसे स्क्रीन शेयर कराएंगे और फिडल पर आपको कोड कराएंगे. स्मॉल कोड्स, नॉट वेरी बिग कोड्स, बट या स्मॉल कोडिंग, दे जज यू ऑन दैट बेसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस आप स्टैक ब्लिट्स भी, कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि कुछ इंटरव्यूज में दे आल्सो लाइक टोल्ड मी कि आप स्टैक ब्लिट्स ओपन करो एंड दे गिव मी दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट इन एंगुलर. सो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. और की पॉइंट्स यही होंगे कि आप जब भी कोई इंटरव्यू दो तो जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उन्हें रिमाइंड करो, अपने दिमाग में रखो, और ये सोच के मत दो कि इस इंटरव्यू में होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है. बट आप उसे कहीं लिख लो, कहीं उसको लिख लो आप नोटपैड में या नोटबुक में, ताकि वो आगे आपको काम में आए. So that is very important. That was my main like key point. सो गाइस, ये वाले इंटरव्यू अब एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया है वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड थैंक यू अनन्या, आपका अपना कीमती वक्त निकाल के एंड आपने इतना इतना अच्छा आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूवर्स के साथ में. डेफिनेटली ये वीडियो सभी को पसंद आएगा. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ अलग से क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. वहां पे हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपको वहां पे आंसर्स दे सकें. Thank you so much Aryan for this opportunity, and definitely अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उन्हें बिल्कुल ट्राई करूंगी हेल्प करने का. Also please follow this guy and please subscribe his channel. Thank you Aryan. या थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अरे यार मेरे को ना शर्म आ रही है. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन है. तब मेरे को ना ऐसे आदत नहीं कर सुनने. रुक जा, मैं अपना इंट्रो कर लेता हूँ, है ना. मैं हंस नहीं सकती ना. नहीं, ठीक है यार, ये नहीं बोलना मुझे, कट. ये वाला नहीं बोलना है. For more updates, subscribe to our channel. Click the video links and enjoy watching the videos.